स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और बायट-सेवर्ट्स लॉ, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बायट-सेवर्ट्स लॉ। तो जो एप्लीकेशन हम आज डिस्कस करेंगे वो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, उस करंट की वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में हमें बताना है किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हमें यहाँ पे बायट-सेवर्ट्स लॉ यूज करना है। तो लेट्स ट्राई टू सी हियर हाउ द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन due to a straight conductor can be determined or calculated, we can say. Let's consider, for the purpose, let's consider straight conductor AB. Okay, and now consider, suppose I be the current flowing through it. I is current flowing through the conductor. Due to this current through the conductor, there is a magnetic field around this conductor. And now in the magnetic field of this conductor carrying current, we will consider a point somewhere here, point of observation P. P is the point of observation at which the magnetic field induction is to be determined. Okay, suppose this P is at a perpendicular distance from the conductor A. A is the distance, perpendicular distance of the point of observation from the conductor. Okay, and now for the purpose what we do here, as you know that magnetic field जो हम बायट-सेवर्ट्स लॉ यूज करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले you have to divide this entire current to large number of small infinitesimal segments. Then we will consider only one segment out of them. ठीक है ना, पहले उसी सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we will consider a small segment, very small segment at a point Q. There is a point Q. Point Q पे small current element हमने ले लिया, small segment of the wire, suppose DL. ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी रखेंगे हम in the direction of current. Okay, and current से multiply भी करेंगे, then this is called current element. So IDL is a current element और इसकी डायरेक्शन है along the conductor. ठीक है, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स एंड बी इसकी डायरेक्शन है। अब देखेंगे इसकी पोजीशन क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी। उसके लिए हम यहां से ड्रॉ करेंगे एक वेक्टर जिसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। सपोज आर विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट एलिमेंट आइडियल। एंड नाउ व्हाट इज द here, this is arrow here. Now what is the angle between the current element IDL and this position vector R? It is this exterior angle. Suppose theta be the angle. ठीक है, यहाँ से इनके दरमियान एंगल है, it is the exterior angle. Theta is the angle. Then according to बायट-सेवर्ट्स law, Severt's law, BS law. So क्या कहता है बायट-सेवर्ट्स law? The magnetic field induction at point P due to this small current element is equal to mu naught divided by 4 pi into I dl sine of theta divided by separation square. This is the बायट-सेवर्ट्स law. Okay, what is theta here? Theta is the angle between R and आइडियल या डीएल, इसके दरमियान एंगल है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ओके, एंड नाउ कीप इट नंबर 1. दिस विल गिव यू द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट ओनली। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी हमें मेजर करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। नाउ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी due to entire conductor is given by integrating equation first within proper limits. पहले हम यहाँ पे B, this net magnetic field induction, it is equal to integral of mu naught divided by 4 pi IDL sin theta divided by r square over the entire length L. अभी हम लिमिट्स नहीं दे सकते, entire length L लिख सकते हैं क्योंकि there are
how many variables are there? There are 3 variables. One is theta, because अब हमें entire conductor consider करनी है. When we go from A to B, what will happen? Theta will change, and also the R will change, and DL to with respect to which we have to integrate it. We have to integrate it with respect to length. Length तो variable है ही. So यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ फर्स्ट करंट एलिमेंट ले लेंगे एट एंड ए, तो ये एंगल कितना बनाएगा? इसको इसके साथ मिला देंगे. ओके. अब यहां पे दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट द करंट एलिमेंट एट वन एक्सट्रीम एंड. इट मेक्स एन एंगल हियर, सपोज थीटा 1. ठीक है. एज वी मूव, ठीक है, टुवर्ड्स द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ओ इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. सपोज जब यहां हम मूव करेंगे, यहां पे पहुंचेंगे, तो यहां पे ये एंगल ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. It is less than 90 here. When we reach at point A, this angle theta will become 90, and then जब हम मूव करेंगे यहाँ से, then the angle starts increasing. It increases beyond above 90. ठीक है. यहाँ it is continuously increasing after O. तो beyond O भी increase होगा. यहाँ तक यहाँ पे ये 90 बनेगा थीटा 1. तो फिर इसके बाद it will increase above 90 as we go to move towards the end B. ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. देखिए, इट इज द एक्सटीरियर एंगल. इस तरह से मैं दिखा दूंगा. ये इस तरह से है. दिस एंगल थीटा हियर. जब ये हम मूव करेंगे इसको आगे आगे, यहाँ पे 90 बन रहा है ये एंगल. ठीक है. तो ये यहां से फिर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. इज दिस क्लियर टू यू? सो व्हेन वी मूव फ्रॉम ए टू बी, एंगल थीटा 1 जो है, एंगल थीटा जो है बिटवीन द पोजिशन वेक्टर एंड द करंट एलिमेंट, इट इज इंक्रीजिंग continuously up to end B. ठीक है. At O it becomes 90. उसके बाद फिर further increase हो रहा है. What about R? R is the distance of the what point of observation from the this current element. जब दूसरा current element ले लेंगे तो ये distance decrease हो जाएगी. Decrease up to the point O. यहाँ पे जो distance होगी current element की from the point of observation, ये होगी minimum. ठीक है. And then it starts increasing again. तो R भी वेरिएबल है. सो R इज वेरिएबल, थीटा इज वेरिएबल, L इज ऑल्सो वेरिएबल. सो अब यहां पे हम क्या करेंगे? हम यहां पे तो ऐसा इंटीग्रल सॉल्व करना मुश्किल है. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू कन्वर्ट थीटा इंटू L, R इंटू L, और L इंटू थीटा और R इंटू थीटा बोथ. या एक और तरीका है, L किसी नए वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, थीटा को भी उसी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, R को भी उसी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल आना चाहिए. इज क्लियर? तब जाके हम ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकेंगे. केस नंबर 2. अब देखते हैं क्या करेंगे हम. अब यहाँ पे करेंगे एक चीज, हम L को भी थीटा में कन्वर्ट करेंगे, R को भी थीटा में कन्वर्ट करेंगे. 2 तरीका भी है. ठीक है. तो वही तरीका हम यहाँ पे करेंगे. For that, we will consider a triangle here, this triangle. ठीक है. तो यहां पे थीटा 1 है, इसका वैल्यू दूसरे एक्सट्रीम एंड पे इसका वैल्यू क्या होगा? इसके मिलाएंगे. ठीक है. ये है R यहां पे. इसको थोड़ा सा यहां से एक्सटेंड करेंगे. दिस इज द एक्सटीरियर एंगल हियर एंड दिस सपोज इज द थीटा 2. Theta 1 is the initial limit for the angle, and theta 2 is the final limit. Initial boundary condition, this is the final boundary condition. Okay, this is theta is somewhere in between. और ये थीटा चेंज हो रहा है. इसका इनिशियल वैल्यू है थीटा 1 थीटा का, एंड फाइनल वैल्यू है थीटा 2. इज दिस क्लियर? ओके. अब हम ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज थीटा हियर. तो ये एंगल कितना होगा? इफ इट इज थीटा, देन दिस वुड बी 180 माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा. ये एंगल यहां पे दिखाएंगे. इट इज पाई माइनस थीटा. ओके. दिस इज पाई माइनस थीटा एंगल. सो दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हम इन राइट ट्राइंगल OPQ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, T रेशियो cos थीटा, किसके बराबर है?
cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। और यहाँ पे जो एंगल है इट इज पाई माइनस थीटा, तो थीटा नहीं दिख सकते। यहाँ पे हमें जो रेफरेंस एंगल है इट इज कॉट पाई माइनस थीटा, एंड कॉट पाई माइनस थीटा इज 1 by tan pi minus theta. Okay, and it is equal to what? Tan theta is perpendicular divided by base, तो cot theta होगा base divided by perpendicular। तो जो यहां से O से लेकर A तक डिस्टेंस है ये हम रिप्रेजेंट करेंगे सपोज L, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इट इज L। ओके, तो फिर आएगा यहां पे बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर L डिवाइडेड बाय A। So what is cot 180 minus theta? It is 180 minus theta। 180 जब होगा एंगल तो cot ही रहेगा, cot theta, and it lies in the second quadrant। So वहां पे साइन पॉजिटिव है, कोसाइन पॉजिटिव है, तो बाकी नेगेटिव है, तो आएगा माइनस cot theta is equal to L by A। एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा L इज इक्वल टू माइनस A cot ऑफ थीटा। ओके, कीप इट नंबर थर्ड। यहाँ पे हमें DL चाहिए, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे हम। देन आफ्टर डिफरेंशिएशन वी विल गेट DL इज इक्वल टू माइनस A, डिफरेंशिएशन ऑफ cot थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का आएगा डी थीटा। ओके, माइनस माइनस कैंसिल, सो डी एल इज इक्वल टू ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इज क्लियर? तो दिस इज नंबर फोर्थ इक्वेशन। सो बाय दिस we have convert L dl into what? थीटा into d थीटा। तो इसको हम ने थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो आर को भी थीटा में हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से अगेन फ्रॉम द सेम राइट एंगल ट्रायंगल POQ, अब यहां पे देखेंगे कोसेक थीटा किसके बराबर है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा एज यू नो, सो इट विल बी इक्वल टू थीटा। यहां पे एंगल जो है, यहां पे एंगल है इट इज कोसेक, एक्चुअली इट इज 90 माइनस थीटा, यहां पे लिखना है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर है? सम पीपल हैव A by R, तो ये रेसिप्रोकल आएगा तो R by A आएगा, यहाँ पे R डिवाइड बाई A। एंड कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक तो कोसेक ही बनेगा रहेगा। अगर 180 राइट एंगल होगा माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो वहां पे साइन पॉजिटिव है एंड साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, तो कोसेक थीटा ही आएगा। इज इक्वल टू R डिवाइड बाई A. It is positive in the second quadrant. And now cross multiply यहाँ पे, तो यहाँ से you will get R is equal to A cosec theta. Is this clear? A is constant, so it is the relation between R and theta. तो इसकी मदद से हम R के बदले थीटा लिख सकते हैं, यानी कि R को हमने थीटा में कन्वर्ट कर दिया। This is the another relation, equation number 5. तो अब यहां पे लिखेंगे हम यूजिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इन सेकंड, वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू द म्यू नॉट इज कांस्टेंट, I is constant, 4 pi is constant, take it out of the integral, and inside there remains what? DL के बदले हमें पुट करना है A, ये बनेगा यहाँ पे A cosec स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाय R स्क्वायर, R के बदले आएगा A स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर? एक एक कैंसिल हो जाएगा, एक cosec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इसके साथ यहाँ पे डी थीटा भी है, वो यहाँ पे लिखेंगे डी थीटा। एंड नाउ
इट कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज थीटा, तो थीटा के लिए हम लिमिट यूज कर सकते हैं. इनिशियल लिमिट फॉर द थीटा इज थीटा 1, तो थीटा 1 यहाँ पे लिखेंगे, एंड द फाइनल लिमिट is theta 2. So we have to integrate it from theta 1 to theta 2, तो entire conductor इसमें आ जाएगा. So you can write as mu naught I divided 4 pi integral of theta 1 to theta 2 of what this sine theta d theta. ठीक है? Okay. So what is the integral of this sine theta? It is minus cos theta, and the limit is theta 1 to theta 2. Okay? अब ये और सॉल्व करेंगे, इसमें लिमिट्स दे देंगे. यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई. यहाँ से एक ए भी है, वो हम भूल गए, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे वो बाहर आएगा, वो डिनोमिनेटर में. इट इज ए एंड ए स्क्वायर, ए कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में ए आ रहा है. ठीक है, 1 बाई ए हम इसको बाहर ले रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी ए है ये, तो दिस विल बिकम म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए, माइनस बाहर आ रहा है, तो लिमिट दे देंगे. पहले अपर लिमिट, दिस विल बिकम कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस cos of theta 1. तो माइनस से वापस इसको अंदर ले जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, इट विल बिकम cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. जब हम ये नेगेटिव साइन अंदर ले जाएंगे इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव. ओके, तो ये दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ point due to a straight conductor carrying current. If you know the value of A, theta 1 and theta 2, you can calculate the magnetic field induction at a point P. And if you also know the current, अगर current भी आपको पता है, तो magnetic field induction आप measure कर सकते हो. Is this clear? And now we will discuss some special cases. अब जो हमारे पास expression है, the magnetic field induction due to a straight conductor is equal to mu naught I divided by 4 pi A inside cos of theta 1 cos of theta 2. This is the expression for the magnetic field induction at a point due to a straight conductor carrying current. Keep it number. Okay. अब special cases है यहाँ पे, some special cases. First special case is अगर एक straight conductor होगा of finite length. Suppose straight conductor is there of finite length, A, B is a straight conductor of finite length, and the point is lying on the right bisector. यहाँ पे एक right bisector ले लेंगे. Right bisector, as you know that, it is a line which passes through the center and is perpendicular to the conductor. This is called right bisector. इसी right bisector पे एक पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पे P. तो इसी पॉइंट P पे हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा. एज इज क्लियर? तो इसकी जो टोटल लेंथ है, मान लीजिए टोटल लेंथ है L, तो ये यहां से L/2 होगा. ठीक है, बिकॉज इट इज राइट बाइसेक्टर, बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन है, यहां से भी ये L/2 होगा. तो लेफ्ट साइड जो हाफ लेंथ होगी, राइट साइड भी हाफ लेंथ होगी. तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमें बताना है फॉर कंडक्टर कैरिंग करंट. ओके, यहां पे इस तरह से लिखिए, फॉर कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ. ठीक है, L, finite length L, and P lies on its right bisector.
वाइड बाइसेक्टर, ठीक है। ओके, ये इनिशियल एंगल होगा θ1, ये फाइनल एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल θ2, ठीक है। तो ये लेंथ है l/2, ये डिस्टेंस है a, ओके। दिस इज θ1, तो ये भी θ1 ही होगा। अंडर दिस कंडीशन, if it is θ1 then this would also be θ1, this is θ2 here, ठीक है। तो ये θ1 किसके बराबर होगा? इट वुड बी θ1 would be equal to 180 minus θ2. Is this clear? शाबाश। देन यहाँ पे जो cos θ1 यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्योंकि θ1 ये θ1 बराबर इंटीरियर एंगल्स, तो वी कैन राइट इट एज B equal to magnetic field induction would be mu naught I divided by 4 pi A। तो यहाँ पे ये बनेगा cos of θ1 minus cos of θ2 किसके बराबर है? 180 minus theta, and we can write it as mu naught I divided by 4 pi A cos of θ1 minus cos of 180 minus theta. It lies where? In the second quadrant, ठीक है। cos ही रहेगा, मगर cos वहां पे नेगेटिव है, ठीक है। माइनस माइनस ये होगा प्लस cos of θ1, this cos of θ1, okay। तो it will become mu naught I divided by 4 pi A, ये बनेगा twice cos of θ1, okay। and we can write it as 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, mu naught I divided by twice pi A cos of θ1. This is the expression for the magnetic field induction at a point. If the point lies where? At the wide bisector of the conductor, then this is the expression is simplify हो गई। तो ये एक्सप्रेशन वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और cos थीटा को फिर से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको हम। कंसिडर वन राइट ट्रायंगल OPB ले सकते हैं हम, OPA ले सकते हैं, बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। कंसिडर वन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल OPB, right triangle OPB, and this right triangle cos theta को हम कन्वर्ट करेंगे, we will write it in terms of the distances, in terms of length and sides of a triangle. Cos θ1 is equal to curly black here, this is base, this hypotenuse, L divided by 2 divided by R, okay। तो R के बदले हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ L divided by 2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी कैन राइट एज L divided by 2 टाइम्स, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से 1/2 बाहर आएगा, and there remains inside L square plus 4A square. ये 2 cancel and you will get L divided by under root of L square plus 4A square. This is the cos theta here. We will put this cos theta and this equation, okay, then it will become mu naught I divided by twice pi A, cos theta के बदले हम लिख सकते हैं L divided by under root of L square plus 4A square. This is clear, and the final expression जो यहाँ पे इसमें कुछ बस, this is the final expression for what? The magnetic field induction at a point. ये भी ले सकते हैं हम और ये भी। If you know the angle θ1, initial angle, तो आप ये यूज कर सकते हो, and if you don't know what is the initial angle θ1, what's the value of θ1, then you can use this expression if you know the length L, length of the conductor, and perpendicular distance and current, then you can use this expression for the determination of what the magnetic field induction at a point to test straight conductor. In case the
point lies where? On the right bisector of the conductor. Okay, this is special case number 1. अब है इसी तरह से special case second. Second case. In second case, we will consider a straight conductor of infinite length, or a conductor of infinite length. Okay, and P lies near its midpoint. Okay, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, वो लंबा सा कंडक्टर है ऑफ इन्फिनिट लेंथ, बहुत ही ज्यादा लेंथ है इसकी, इन्फिनिट लेंथ, एंड द पॉइंट समवेयर हियर नियर इट्स मिड पॉइंट, इसके नजदीक है पॉइंट पी. ओके, तो यहां पे जो एंगल बनेगा इस एक्सट्रीम पे वो होगा θ1. तो जो इस एक्सट्रीम पे एंगल बनेगा यहां से इंटीरियर एंगल होगा, ये θ1. ये यहां से जो एंगल होगा वो होगा एक्सटीरियर एंगल θ2. इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल. अगर ये बहुत लंबी कंडक्टर होगी, व्हाट विल हैपन टू दिस एंगल? इट अप्रोचेस टू व्हाट? फॉर एन इन्फिनिट कंडक्टर इट अप्रोचेस टू 0. सो θ1 विल बिकम 0. देन अंडर दिस कंडीशन θ1 is equal to 0, and what about θ2? ये तो स्ट्रेट कंडक्टर बनेगा फॉर इन्फिनिट, या तो स्ट्रेट एंगल बनेगा यहाँ पे फॉर इन्फिनिट कंडक्टर फॉर ए कंडक्टर ऑफ इन्फिनिट लेंथ. ठीक है, ये तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज जितनी लेंथ बढ़ेगी तो फाइनली इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट? फॉर ए कंडक्टर ऑफ इन्फिनिट लेंथ इट विल बिकम 180. इज दिस क्लियर? यूजिंग दीज वैल्यूज इन द अबोव, यहाँ पे लिखेंगे मिड magnetic field induction of an infinite conductor at midpoint is equal to their midpoint. क्या मिलेगा? mu naught I divided by 4 pi a. This is the general expression. You can use it anywhere. ये special cases है. अगर ये special case होगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? Generally infinite conductor ही देते हैं हम. तो θ1 0, ये बनेगा cos of 0 minus cos of pi 180. Okay, so this will become midpoint mu naught I divided by 4 pi a. यहाँ पे थीटा के बदले 0 आएगा, and cos 0 is 1, and cos 180 is minus 1, minus plus 1, and it will become ये 2 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, it will become mu naught I divided by 2 pi a. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये हमेशा याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, पेयर्स लॉ में भी इसकी जरूरत है. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ इनफिनिट लेंथ near its midpoint, okay, is equal to mu naught I divided by 2 pi a. 2 pi a. 2 pi is constant and a is the perpendicular distance. Okay, this is the expression. इसी तरह से थर्ड केस, लास्ट केस, इसी तरह से for a conductor of यही लेंथ ले लेंगे infinite length, and this time we will consider that P lies near one end of the कंडक्टर. ठीक है, अगर एक एंड के नजदीक होगा तो कंडक्टर इस तरह से ले लेंगे हम, इन्फिनिट कंडक्टर. बहुत ही लंबा कंडक्टर है, तो एक पॉइंट यहाँ पे नियर वन एंड, इस एंड ए, एंड ए के नजदीक है. ओके, यहाँ पे जो एंगल बनेगा पोजीशन वेक्टर के साथ थीटा, what it means θ1, ये θ1 किसके बराबर होगा? इट विल बी 90 के बराबर. अब ये इन्फिनिट कंडक्टर है, जो दूसरे एंड पे एंगल बनेगा वो होगा
एक्सटीरियर एंगल थीटा 2 वो होगा पाई के बराबर 180 के बराबर. तो अंडर these conditions theta 1 this theta 2 theta 1 is 90 and theta 2 is 180. Then the magnetic field induction will become mu naught I divided by this is the expression 4 pi a. Here is theta 1 90 cos 90 minus cos of 180, and it can be written as mu naught I divided by 4 pi a. Cos 90 is 0, as you know. This is minus 1, it will become minus minus plus 1, तो ये बनेगा mu naught I divided by 4 pi a. This is magnetic field induction at end point. ठीक है, at end point है near end point, near end point of the conductor. अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे, it is clear from these two expressions that magnetic field induction at midpoint, near midpoint is mu naught I divided by 2 pi a, but near one end it is mu naught I divided by 4 pi a. ठीक है ना. तो एक एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा नियर द वन एंड ऑफ द इन्फिनिट कंडक्टर, वो होगा हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द नियर द मिड पॉइंट ऑफ द कंडक्टर. तो मिड पॉइंट पे डबल होता है. इट इज क्लियर फ्रॉम दिस एंड दिस यू विल गेट magnetic field near the midpoint is equal to twice the magnetic field near the end of the conductor, near one end of the conductor. Is this clear? ये इसके लिए मैं रिलेशन. तो जो कंडक्टर होगा तो बीच में अगर हम मिड पॉइंट के नजदीक पॉइंट ले लेंगे, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो होगा मैक्सिमम. ठीक है ना. एंड इफ वी मूव टुवर्ड्स ईदर एंड ऑफ द कंडक्टर इट डिक्रीजेस, and at near its ends the magnetic field induction is minimum. Is this clear? Okay. ये हमने इस तरह से ये एप्लीकेशन कंप्लीट कर दी. और दूसरी एप्लीकेशन भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.